Okay, girls, we are trying to solve some more problems on the division of polynomials. But before that, please see that ax square plus bx plus c is a standard form of quadratic polynomial. If I write in equals to 2x square minus 3x plus 4. Okay, then what we assign these values? A is equals to 2, b is equals to minus 3, c equals to 4. Or we can say that both the polynomials are equal, then a is 2, b is minus 3, c is 4. या हम यहाँ पे बेटा कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a is compared with 2. Okay, if I have to compare ax plus b with 2x plus 3, then what I write? A is equals to 2, b is equals to 3. Okay, clear है बेटा? Now we are moving to the example. The question is, if a polynomial fx is equal to 3x4 minus 4x cube minus 16x square plus 15x plus 14, if the polynomial fx equals to, when divided by gx equals to x square minus 4, remainder is px plus q, then we have to find the values of p and q. Question क्या है बेटा? If the polynomial fx is divided by another polynomial gx, here gx is x square minus 4, what we have to do? We have to divide fx by gx, and what they are saying? They are saying that remainder will be in the form px plus q. So we need to find the values of p and q. Okay, हमें पोलिनोमियल fx को gx से डिवाइड करना है सिंपली, और हमारा रिमाइंडर किस फॉर्म में आना चाहिए? px प्लस q के फॉर्म में. तो आई एम ट्राइंग टू डिवाइड इट. थ्री एक्स फोर माइनस 4x क्यूब minus 16x square plus 15x plus 14 divide by x square minus 4. We have to divide that polynomial by x square minus 4. So beta, try to divide 3x4 upon x square. What will be there? 3x square. डिविडेंड की फर्स्ट टर्म अपॉन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म, जो आंसर आया वो क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म. तो एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3x4 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12x स्क्वायर. हियर वी विल राइट इट. ओके, यहाँ साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. ठीक है, अब माइनस 4x क्यूब एज इट इज, माइनस 16 प्लस 12 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 14. क्लियर है? ये माइनस प्लस माइनस हुआ, बड़ी वैल्यू नेगेटिव थी, हमने साइन नेगेटिव लगाया. नाउ माइनस 4x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर का माइनस 4x में इंटू किया मैंने, तो क्या बनेगा? ये माइनस 4x क्यूब, माइनस 4 का माइनस 4x में इंटू किया, ये क्या बनेगा? 16x. हियर आई विल राइट 16x प्लस ये माइनस, ये कैंसिल. अब यहाँ आ गया माइनस 4x स्क्वायर, 15x माइनस 16x माइनस का 1x प्लस 14. नाउ माइनस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16.
Again sign change, this plus, ये minus, you can see remainder is minus x minus 2. So on dividing fx by gx, I am getting remainder is minus x minus 2. But what they have given, firstly you divide it, then we will solve it for values of p and q. ओके बेटा, हमारे पास रिमाइंडर क्या मिला है, minus x minus 2. But what they have given us remainder, their remainder was px plus q. So we will compare that px plus q with our original remainder, that is px plus q is equals to minus x minus 2. हमारा रिमाइंडर क्या आया है, माइनस एक्स माइनस 2. उन्होंने क्या रिमाइंडर दिया था, px plus q. So we are comparing the coefficients of x. Here coefficient of x is p, here it is minus 1. So the value of p is minus 1 and the value of q is minus 2. This is our answer. Okay beta. Now we are moving to next question. Second question is also of that kind. If the polynomial, if fx is equal to x4 plus x cube plus 8x square plus ax minus b is divisible by x square plus 1, then find the values of a and b. क्वेश्चन क्या है बेटा, if fx equals to एक पोलिनोमियल गिवन है x4 x to the power 4 plus x cube plus 8x square plus ax minus b is divisible by. यहाँ बेटा डिविजिबल बाय का मीनिंग क्या होता है कि इस पोलिनोमियल को x स्क्वायर प्लस 1 से जब हम डिवाइड करते हैं, when we divide fx by x square plus 1, then our remainder should be 0, तभी ये इससे डिविजिबल कहलाएगा. तो ये अगर पोलिनोमियल इससे डिविजिबल है तो हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है. मीन्स यहाँ a और b की जगह क्या नंबर्स आएंगे, जिस उसके बाद अगर इससे डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. ओके, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. If fx is completely divisible by x square plus 1, then we have to find the values of a. x4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये पोलिनोमियल था fx जो क्या बोला है, इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है. मतलब अब मैं अगर इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ ना तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए. बेटा फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन x4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x4 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ साइन चेंज, ये कैंसिल, एक्स क्यूब एज इट इज उतार दिया, 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर. ये हमें पता है प्लस माइनस माइनस होगा, बाकी लार्जर नंबर 8 पॉजिटिव है इसलिए साइन पॉजिटिव आया, प्लस ax प्लस b एज इट इज. नाउ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इज x, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया बेटा एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स हो गया प्लस 1x. अगेन साइन चेंज, ये माइनस, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल,
ये हो गया 7x²। अब बेटा ये ax माइनस 1x है, यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है। अगर यहाँ a की जगह कोई नंबर होता, मान लो 5 होता, तो हम इसको क्या लिखते, 5 माइनस 1 4x मिलता। अब यहाँ ax माइनस 1x क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस 1x। ये ध्यान रखना है हमें बिल्कुल। a माइनस ax में से 1x माइनस करेंगे तो a माइनस 1x, मैंने x कॉमन ले लिया और इसे a माइनस 1 लिख दिया, प्लस b एज इट इज उतर गया। इसमें तो x है ही नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है। अब बेटा 7x² अपॉन x², 7 x² इंटू 7 हो गया 7x²। 1 इंटू 7 क्या होगा, 7, तो उसे हम x के नीचे नहीं लिखेंगे, 1 इंटू 7 को b के नीचे, विदाउट x वाली टर्म है, तो ये माइनस कैंसिल, ये भी साइन चेंज हुआ तो माइनस, तो a माइनस 1x बचा प्लस b माइनस 7। ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना है। ax माइनस 1x क्या होगा हमेशा, जैसे ये इस टाइप से लिखा है ax माइनस 1x, तो मैंने x कॉमन लिया तो a माइनस 1 हो गया। अब बेटा क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ था, fx इज डिविजिबल बाय x² प्लस 1, मीन्स ये पोलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0। आप इसे करिए डिवाइड। Okay girls, our remainder is a minus 1x plus b minus 7. But what they said, that the polynomial is completely divisible, so the remainder should be 0. Now beta in previous one there was remainder px plus q, तो हमने p और q इजीली फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पूरी वैल्यू 0 कब आएगी, जब x का कोफिशिएंट भी 0 हो और कांस्टेंट टर्म भी 0 हो, तभी 0 प्लस 0 0 बनेगा। या हम इस 0 को बेटा चाहे तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 0 इंटू एक्स क्या होगा, 0, और फिर उसमें एक और 0 प्लस करेंगे तो भी 0। तो हम 0 को इस टाइप से किसी भी पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, 0 पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था ना, डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ समझ में आ रहा है, इधर अभी मुझे लीनियर पोलिनोमियल मिला डिग्री 1 वाला, तो मेरे पास जो रिमाइंडर 0 था मैंने उससे 0 पोलिनोमियल डिग्री 1 वाला बना लिया। इधर क्वाड्रेटिक मिलता तो मैं एक टर्म 0x² में बना देता। तो इसलिए 0 पोलिनोमियल की डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, हमें उसे जैसे लिखना है हम वैसे लिख सकते हैं। तो बेटा आप कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट 0, इधर a माइनस 1, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म b माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो b इक्वल्स टू 7। ओके, तो जब भी हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल बोलते हैं तो हम 0 से कंपेयर करते हैं रिमाइंडर को। और हमने लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन भी करा था, शो दैट द पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ अनदर पोलिनोमियल, मींस रिमाइंडर शुड बी 0। ओके, शुड आई रफ इट? आपके लिए ये क्वेश्चन है खुद